السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کچھ دن قبل جو شہریار شبیر برکاتی اور کفیل عنبر کے مابین جو جھگڑے اور لفڑے کے جو معاملات چل رہے تھے، اس متعلق ایک میٹنگ رکھی گئی تھی۔ اس میٹنگ میں علاقے کے اور بہار کے بڑے بڑے علماء کرام شریک ہوئے تھے۔ اس میں کیا فیصلہ ہوا، اس میں آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ کفیل عنبر میں نے معافی وغیرہ مانگ لی ہے۔ دیکھیے اب کیا ہے کیا نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، قاضی صاحب کس کسی طرح پر فیصلہ پابندی کرتے ہیں لگا کے انشاءاللہ۔ جو آپ کچھ یہ ہوا سوچئے گا صحیح ہوا۔ کہ ہم اس کو مجبور کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ بائیکاٹ کر کے کیا کیجیے، کیا بائیکاٹ کیجیے، بائیکاٹ کر کے کیا فائدہ۔ ہاں، شاعر پڑھ رہا ہے، وہ 1.5 گھنٹہ پڑھ چکا۔ یہ عالم لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اتنی بڑی بڑی ٹوپی لے کر، اب پڑھیے، اب یہ فرمائش ہے 1.5 گھنٹہ کے بعد یہ عالم کہتا ہے کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ صحیح مشورہ دیں، کسی کے ٹھوس میں نہ آئیں، دین کو نہ چھپائیں، مسائل کو مد نظر رکھیں، اور ہرگز اپنی بات کو، عوام کی بات کو مان کر آپ جلسے کو خراب نہ کریں۔ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی نقیب کی ضرورت نہیں۔ جلسہ میں علماء کی تقریر 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم ہو جائے، آج بالکل بیکار ہو چکا ہے۔ یہ سب کو احساس ہے۔ کیوں بیکار ہوا؟ اس میں ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے، عوام جو بھی جلسہ کرتی ہے علماء سے رابطہ کرتی، علماء مشورہ دیتے ہیں فلاں کو بلوا لیجئے، فلاں کو بلوا لیجئے، فلاں کو بلوا لیجئے۔ اگر یہ مشورہ آپ علماء دین کے بارے میں، مدرسین کے بارے میں دینے لگیں تو انشاءاللہ تعالی اسٹیج اچھا ہو جائے۔ آپ مشورہ صحیح دیں، جتنے بھی لوگ ہیں علماء کو، میں کہوں گا چھوٹے بڑے سب کو، آپ صحیح مشورہ دیں، کسی کے ٹھوس میں نہ آئیں، دین کو نہ چھپائیں، مسائل کو مد نظر رکھیں، اور ہرگز اپنی بات کو، عوام کی بات کو مان کر آپ جلسے کو خراب نہ کریں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، جلسے کا جو ماحول خراب ہے اس کو ایک بیٹھ سدھارنا بہت مشکل ہے۔ ایک طریقہ ہے، ہم لوگ سدھار سکتے ہیں اگر عالم چاہیں تب، اور اگر عالم نہیں چاہیں گے تو کبھی نہیں سدھاریں۔ سیمانچل کے بڑے قاضی صاحب، اس لیے آپ کو ضرورت ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہے نا۔ اور جلسے کو اس وقت ابھی سدھارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ ابھی فوراً عوام کو سمجھانے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ یہ کریں، جلسہ میں علماء کی تقریر 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم ہو جائے۔ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی نقیب کی ضرورت نہیں۔ آپ جو نقیب بلائے ہیں، عوام نے جو بلائی ہے، وہ 12 بجے کے بعد شورا اور جتنے بھی نقبات جو بھی ہیں جو ہیں کرتے رہیں، ابھی جو بھی ان کو کرنا ہے کریں، لیکن 12 بجے ساڑھے 12 بجے تک صرف علماء کی گفتگو ہو۔ یہ ہر کوئی سمجھ لیں، تب امید ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تب، نہیں تو ہم نے دیکھا ہے جلسے میں کوئی شاعر پڑھ رہا ہے، وہ 1.5 گھنٹہ پڑھ چکا۔ یہ عالم لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اتنی بڑی بڑی ٹوپی لے کر، اب پڑھیے، اب یہ فرمائش ہے 1.5 گھنٹہ کے بعد یہ عالم کہتا ہے کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ جلسے کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کردار کو صحیح کیجیے۔ آج کے بعد سے کوئی نہیں کہے گا کہ اور پڑھیے اور پڑھیے۔ اس لیے میں کہوں گا 12 بجے تک علماء کی تقریر ہو، اس پر آپ لوگ پہلے ہاں کہیے کہ ہاں ہم لوگ ہر علاقے میں اس پر عمل کریں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، خرابی کو دور کرنے کے لیے یہی ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی، ابھی یہ ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو مت بلائیے۔
ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं। आलिम है, हम कैसे कहेंगे कि ये नहीं पढ़ते हैं? वो ऐसे कैसे, वो जल से मैं खुदे पढ़ने लगे, हम लोग ये कैसे जानेंगे? फिर लास्ट में इसलिए मैं खुद बहुत तबसरा करूंगा। ये सब मुश्किल वाली बात है। जी ये इंशाअल्लाह। बहुत जी, मुश्किल जी, जी, बिल्कुल। ये सब नहीं कर सके। बोलते लेकिन रहें तरीका मुफ्ती क्या है? साहब, खामोश आप नहीं अपने रहिए, इलाके बोलते में कम रहिए, से कम बोलते रहिए। उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए। आज तो लगता है शब्बीर बरकाती के कम से कम इतना गांठ कीजिए। छांट सब हो नमाज जाएगी। पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ईशा की नमाज पढ़िए तब देखिए जाइएगा नाज़रीन, आप हज़रात, स्टेज पर। मुफ्ती साहब सबको रोज़ जहो जलाल इसलिए में आप हजरात क्या इस पे आप लोग हैं सहमत कि हम लोग जो भी जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं उनका क्या होगा? मैं मांग नहीं करता हूं, जाता हूं अपनी गाड़ी से, ऐसी जगह भी गया हूं कि अपने किराए से वापस आया हूं, उसका क्या होगा? मुफ्ती साहब रुमाल भी और एकदम देख रहे हैं। अक्सर जगह मुफ्ती साहब 2000 दे दिया, रुमाल भी एकदम 3000 गाड़ी करके संभाल जाता के हूं, 2000 दिया, क्या हाँ, होगा? वो क्या करेंगे? बहुत गुस्से में है। वो क्या करेंगे उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उनको जो है ना 2000 दे दीजिएगा बस हो गया। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए 21,000 नहीं कह सकते हो। आप आलिम है, आप आलिम है, आपने तौहीन की है। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं हम लोगों को सुधारना होगा, हम लोगों को सुधारना होगा, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, जी बिल्कुल 90% छट जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखालिफ खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं हमसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जी मुफ्ती साहब, और उलमाए कराम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबरीन के जलसों में होता था इंशाअल्लाह तबारक ताला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूं, कराम हो जाए ना, माशाअल्लाह, आधी खराबियां जिम्मा से मिट जाएगी। हाँ, जलसा में अकायद की गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाही मौसा कसम खुदा की 25-30 साल से साला हम इस्लाही मौसा ही पर बोल रहे। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? हमारी आवाम सुलह कुल्ली होती चली जा रही है, हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, मुझके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने आवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होनी चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तायद करते हैं?
आप हजरात इसकी तायद करते हैं? आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक ताला। और एक बात याद रखिएगा, आज जो चाहिएगा कि जो नात पढ़ने का तरीका है आज करके इस दौर में, वो एक बैग खत्म हो जाए, बड़ा मुझे आप बाइकाट करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिए, बाइकाट करके क्या फायदा। हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नात खा आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा, जो आवाज में है आप पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं, शायर लोग इक्को इतना कर देते हैं, कोई सुन भी नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठे तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें, और जो कहे इक्को चलो इक्को कहे उसको, उस शायर को बैठा दें। कहें बगैर इक्को के पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठ जाइए, आपको जो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला माहौल सही हो जाएगा, माहौल सही हो जाएगा, बायकाट की जरूरत नहीं है। और नकोबा हजरात, अच्छा नकोबा हजरत, एक एक करके आ रहा हूं। नकोबा हजरात, नाजिम इजलास, नकीब इजलास, बाप रे बाप, अलकाब खुदा की पनाह। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग निकाबत कैसे करते। जी बिल्कुल सही, वो लोग निकाबत कैसे करते, वो आएंगे। अभी आपने फजीलतुल शेख फला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजीलतुल शेख फला तशरीफ ला रहे हैं, बस हो गया। तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया मुकर्रिर को, आपको नहीं। और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप नात पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रिरीन को कहा जाए कि नात पढ़ने वाले को मैंने मदऊ कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, नात नहीं। जो कुछ कह रहे हैं फिलहाल तो बेहतर है माशाअल्लाह। बोलाइए जिसको बोलाना है। एक साल अगर आपने अमल कर लिया, ये सारे निकल जाएंगे, सब खुद ब खुद निकल जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह ताला सब निकल जाएंगे, किसी पे पाबंदी की जरूरत नहीं। हाँ चलिए, एक बात याद रखिएगा, लोग कहेंगे हुजूर ये इलाका देवबंदियों का है और ये इलाका सब के सब देवबंदियों का है, हम लोग 20% हैं सिर्फ, वहां हम क्या करें। सुनिए, आप अलल ऐलान कहिए, इश्तिहार निकालिए कि ये मसल के अहले सुन्नत बरेलियों का जलसा है और इसमें अकायद की बात होगी और फला आलिम अकीदे पर गुफ्तगू करेंगे। किसी को सुनना हो तो आए, नहीं सुनना हो तो हरगिज तशरीफ ना लाए, हरगिज मदरस जलसा गाह को जंग का अखाड़ा न बनाए। ये आप कहें, जहां भी 20% हो वहां आप कहिए, एकदम अलग ऐलान कहिए। और मेरा तजर्बा ये है कि जिसमें अगर आपने इश्तिहार में लिख दिया कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में देवबंदियों के जो अकायद हैं वो बयान किए जाएंगे, तो आपका खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मजमा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मेरा तजर्बा है बढ़ जाएगा, मजमा बढ़ जाएगा। इसलिए आप खुदा के लिए समझौता अकीदे में न करें, हरगिज समझौता अकीदे में न करें। अकीदे का प्रचार लाजिम है और बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। मैं नकोबा हजरात से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। और उनके बाद एक बात और भी, आवाम को, जो आवाम की ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुनकर के चले जाते हैं। अगर आपने
12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया, वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही हो जाएगा। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ से मैं खुद इस पर अमल करूँगा। 12 बजे से पहले हमारे यहाँ जलसा हो जाएगा। किसका? मुकर्रिरीन का। और उसके बाद शोरा जो हैं जो भी होंगे वो कहते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अदब के दायरे में। अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहां से निकाल बाहर करेंगे इंशाल्लाह तबारक तआला। तो आप हजरात, उम्मीद है कि मेरी बात को गौर से सुने होंगे और इंशाल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यासीन साहब क़िबला मदद आली से अर्ज़ करूँगा कि 2-3 कलिमात आप भी कुछ बयान फरमा दें ताकि हम लोग मुस्तफ़ीद हो जाएं। अच्छा, और एक चीज़, महंगा जलसा बहुत हो रहा है, बहुत जलसा महंगे हो रहे हैं, तो वही उसी की वजह से हो रहा है, मांग जो इतना हो रहा है। लेकिन अगर आप 12 बजे वाला मामला नुस्खा को अगर अपना लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अवाम इंशाअल्लाह ताला वो महंगे लोगों को नहीं बुलाएंगे। और आप जलसा कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि हम इस जलसे से हमारे गांव में जो मदरसा है वहाँ बचा करके, उस जलसे में 2-3 लाख बचा कर वहाँ 2 मदरस को बहाल करेंगे, जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे और काबिल मुदर्रिस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहाँ भी हो, और उलमा से भी मैं कहूँगा अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं, अगर कहीं वहाँ मदरसा नहीं है तो वहाँ आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज़ पेश की गई, इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता है, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता है। अब यह है कि कफील अंबर में ने माफ़ी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो माफ़ी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा है, नहीं, वो तो खुद कह रहा है, इसने वो उसकी आवाज़ है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। 1 मिनट और भी, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इदारा है, ठीक, एक मिनट बैठिए, बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो है, हाँ, तब तो फिर शोरा जितने भी है ना, और जितने भी मुकर्रिरीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगेगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसने भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है, उसको भी उस पर भी पाबंदी लगेगी। पाबंदी लगी हुई, लेकिन अमल नहीं हो रहा है ना। ये बेअमल के, हाँ, नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के भी नमाज नहीं पढ़ते जी, ये भी हो रहा। हाँ, चलिए रखिए, आप लोग तशरीफ रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है। सुन लीजिए, उलमा का राब्ता, बड़े उलमा ने रात में गुफ्तगू हमसे की है। उन लोगों ने कहा कि इस बज़्म को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए।
आपका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। और उनके बाद फिर ये कि खबरदार खबरदार, बड़े बड़े उलमा ने हमसे राब्ता किया कि ये अभी अगर किसी का नाम लेकर पाबंदी करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है और इस तरीके से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं। जो भी शोरा उस अंदाज से झमाझम से पढ़ेंगे उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बायकाट नहीं बुलाएंगे, नहीं। ये होना चाहिए कि उसको हम लोग बुलाएं नहीं। और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बायकाट नहीं करेंगे। हम बायकाट नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं। अगर हम लोग हो जाएं इस पर पाबंद तो फिर कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। इसीलिए आपसे हाँ एक मिनट बैठ जाइए। आप हमसे अभी यही क्यों कहलवाना चाहते, क्यों कहलवाना चाहते? कमाल है। नहीं करेंगे क्या मतलब है? मतलब हुआ ना, नहीं बुलाएंगे। ये अभी यहाँ अभी लाइव चल रहा है। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने देख लिया इस वीडियो को। माशाअल्लाह ये मुख्तसर है, मुझे तो मुफ्ती साहब क़िबला की बात बहुत अच्छी लगी, प्यारी लगी। वो संजीदा मिजाज हैं माशाअल्लाह, दूर अंदेश भी है। बाकी और भी उलमाए किराम हैं लेकिन वो उस काबिल नहीं हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए। कुछ लोग कह रहे हैं बायकाट करो, लेकिन मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह कुछ बातें बहुत कीमती बयान कर दी हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सलामत रखे। अब आप हजरत तबसरा करके बताइए कि मुफ्ती साहब का फ़ैसला कैसा रहा, उन्होंने जो कुछ कहा बेहतर रहा या नहीं, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।